Hello my dear students, how are you all? In this lecture, in this video, we will be studying about one more topic of income tax, that is income and the scope of income. Okay, so we all know that in this the main important topic in income tax is what is income actually. So income, under income there is a clear defined definition given by income tax law, that is 1961. So in which what we actually includes in income, there is no such definition. इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं है कि इनकम का मतलब ये होता है. ओके, इनकम टैक्स के लॉ के अंदर इनकम के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करे गए हैं. उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर्सन्स और बॉडीज़ के लिए हम उनकी इनकम को उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट द section for is income under Income Tax Act 1961 is section 224. इनकम का सेक्शन है फर्स्ट, इनकम section is 224. See, we are not required to remember every section, but there are some concepts for which the section has to be remembered because it can be asked in your exams. So from that point of view, some sections are important. So for income, the section is section 224. So what does it mean? What does it mean under section 224? It says that if a people is earning फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अर्निंग कॉमन है, अर्न करते हैं हम. कोई बिजनेस के थ्रू अर्न करता है, कोई सैलरी के थ्रू अर्न करता है, कोई किसी गेन के थ्रू अर्न करता है, कोई इंटरेस्ट के थ्रू, कोई डिविडेंड्स के थ्रू. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर अंडर इनकम. ओके, सो दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी salaries. These concepts includes salaries, wages, gains, profit, and voluntary contribution received by any trust, and any donation given by any trust, any allowance granted, any special allowance given to some person. perks, हम बात करते हैं कंपनीज में ज्वाइन करते हैं तो सैलरी के साथ साथ perks कौन से मिल रहे हैं हमको, what are the perks that you are getting. So all those things which you are getting in the form of money, okay, or which are convertible into money. So it's not only money, which are also convertible into money, like perks or something. They will also, like your health insurance if you are getting from company side, if any daily allowance you are getting from company side. Okay, so these all are included in your income. Every penny that you are receiving from someone for rendering your services, either for goods or services, that is your income. सो मेन बात तो मेन दिस इज थिंग. लेकिन अब हम बात करें कि अगर कोई फीमेल होम मेकर है, इट मीन्स वो हाउस वाइफ है, शी इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर बट शी इज़ ज्वाइनिंग, जो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ना मंथली सेविंग से, तो वो क्या उसकी इनकम है? नो, दैट इज़ नॉट हर इनकम. दैट इज़ कॉल्ड एज अ पिन मनी. वो क्या है? फॉर द हाउस मेकर्स we call it pin money. That is not the income that is being involved. Okay, and the next thing is what all we include all these things, but there are some features that is there under the income which should be there if we are receiving money from someone. First of all, there should be one definite source. There should be one definite source. Okay, second thing is definite source means मतलब it should come from one particular place. It cannot be like unknown thing, जैसे कि रुपए ज़मीन पे गिरे पड़ गए कि अरे ये तो मेरी इनकम हो गई. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक सोर्स पर्टिकुलर डिफाइनेट होना चाहिए, उसको उससे वहाँ से आ रही है तो हम उसको इनकम मानेंगे. नेक्स्ट थिंग इज इनकम शुड नॉट बी लाइक आउट इनसाइड से नहीं होनी चाहिए कि पापा ने बेटे को पैसे दे दिए तो वो मेरी इनकम हो गई. नो, इनकम आउटसाइड पर्सन से आनी चाहिए. तो इनकम शुड बी फ्रॉम आउटसाइड, शुड बी फ्रॉम आउटसाइड. Okay, next thing,
2 पॉइंट्स हो चुके हैं। डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक फादर अपनी बिल में लिख के जाते हैं कि आफ्टर माई डेथ और सम टाइम द मनी और अमाउंट ऑफ माई प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 पीपल्स, मदर एंड द सन। तो जो डिवाइड होके मदर के हिस्से में आएगा या जितना अमाउंट सन के हिस्से में आएगा वो भी एक तरीके का डाइवर्जन है, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। फाइन। Next thing is income either can be temporary or permanent. It can be both. It can be a one-time income, it was one project, it was one event we paid, or it can be permanent like monthly cycle salaries or some projects. So or next we include in either it is a reimbursement of something. What is the meaning of reimbursement? Reimbursement of expenses from someone else. What is the meaning of reimbursement? Reimbursement means when we have incurred some expenses and we give those bills to someone else because हमने वो काम उनके लिए किया था। जैसे सेल्स जॉब होती है या बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें कि हमसे काम कराया जाता है लेकिन हमको बोला जाता है कि इसका पेमेंट आपको बाद में मिल जाएगा, आपको इसका पैसा रीइंबर्स हो जाएगा। तो दोज आर ऑल्सो द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। फाइन। नेक्स्ट इज dispute regarding the title. Next point is dispute regarding title. Now what is title? For example there is one property, okay, उसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट से मतलब है कि लड़ाई चल रही है दो लोगों के बीच में कि वो प्रॉपर्टी किसकी होगी। तो जब वो प्रॉपर्टी किसी वजह से फाइनल रिजल्ट आके किसी जिसके भी पास जाएगी वो प्रॉपर्टी उसकी इनकम में ऐड मानी जाएगी। इट मीन्स दैट डिस्प्यूटेड टाइटल व्हेन इट विल बी डिलीवर्ड टू सम पर्सन दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर दैट पर्सन। और इनकम के अंदर हम लॉसेस भी इंक्लूड करते हैं। अगर किसी वजह से आपको लॉस हुआ है तो उसको भी हम सेट ऑफ करते हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड अंडर आफ्टर डिक्रीजिंग दैट पार्ट। और दूसरी बात कि एक इनकम पे हम 2 बार टैक्स नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट अप्लाई टैक्स 2 times on single income. For example, if I have paid tax on this, so this part, it means on some other point at some other stage I am not, कोई मुझ पे दोबारा से टैक्स उस गुड्स पे नहीं लगा सकता या सर्विस में नहीं लगा सकता। आई एम बीइंग पेड दैट मनी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 224। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, ये रब करना है मुझे। Now after understanding the meaning of concept of income, now we are understanding what are the scope or sources of income that we include in income tax. See, income tax is a law. उसके अंदर सब चीज़ें ना प्री डिफाइंड है, जैसे कि लॉ के अंदर होती हैं, और वही चीज़ फॉलो की जाती है कि यही चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। और लॉ ऐसे भी बनाया जाता है जिसके अंदर कोई चीज़ छूटे ना हमसे, कि ये पार्ट हमसे रह गया या इस पर्सन की सैलरी या इस पर्सन की इनकम तो हम इंक्लूड ही नहीं कर पाए, ये अलग तरीके का इनकम हो गई इसकी, तो ये कहाँ से इंक्लूड होगी, ऐसा नहीं है। लॉ के अंदर गवर्नमेंट हैज़ एंश्योर्ड दैट एवरी पॉइंट, एवरी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज बीइंग काउंटेड ऑन। इट डिपेंड्स ऑन लेटर कि उसको एग्जेम्प्ट करना है या उसको एग्जेम्प्ट नहीं करना है। Now the come to the point that scope or source of income. Scope of income. Now इसको समझने के लिए हम बहुत एक easy concept रखते हैं। Easy concept रखने में क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ में 5 सोर्स डिफाइन किए गए हैं, एंड वी टेक दोज 5 सोर्सेज एज अ फिंगर्स एंड थम्स ऑफ आवर हैंड।
ओके, जिससे कि हमें अच्छे से याद रहेंगी कि एक तरीके से ये हमारा पंजा है, ओके, दिस 5 फिंगर्स, जिसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हम इनकम टैक्स पेयर के नाम से नहीं समझ के पढ़ते, क्योंकि उसमें हमें क्या लगेगा कि हम उस बातों पे ध्यान देंगे कि अगर हम सैलरीड पीपल हैं, इफ़ माई फादर इज सैलरीड पर्सन, तो मैं सिर्फ सैलरी एस्पेक्ट्स पे ध्यान दूंगा, मैं बिजनेस में नहीं दूंगा, या मैं अपने पैसे कैसे बचाऊँ इस पर सोचूंगा। लेकिन अगर मैं एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे किस तरीके से सैलरी वाले से भी पैसा लेना है, बिजनेस वाले से भी पैसा लेना है, और जो जो अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे कैसे पैसा लेना है। तो यहाँ पे हम हमेशा एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के नाम की सोच से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा वाला एरिया किस वाले प्रोफेशन के लिए रोल प्ले कर रहा है। अब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास एक पंजा रहता है, पंजा मीन्स एक हैंड, जिसमें कि 5 इनकम हेड्स वो कंट्रोल करके चलते हैं। 5 इनकम हेड्स में सबसे पहले जो हमारा इनकम हेड है, जो कि हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन के अंडर भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से एक पर्सन 5 इनकम हेड से भी पैसे कमा सकता है, और हो सकता है एक पर्सन सिर्फ एक ही इनकम हेड में हो। इनकम हेड का मतलब क्या है, अब ये समझते हैं। स्कोप ऑफ इनकम और इनकम हेड। ओके, नाउ इनकम हेड के अंदर हम समझते हैं द फर्स्ट इज योर सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी means those who are working anywhere will be getting salary. क्लियर, जो कहीं भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, वो सब हमारे इस हेड के अंदर आएंगे। क्लियर। सेकंड इज इनकम फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन क्या है, नौकरी नहीं कर रहे होगे तो बिजनेस कर रहे होगे, राइट, यही सोचते हैं अभी हम। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे, मेरी अपनी क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अपनी क्लिनिक है, मैं लॉयर हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं एक कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, किसी भी तरीके का बिजनेस या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कोई प्रोफेशन के स्पेसिफिकली भी लेके, तो वो इनकम, वो हेड आपकी इनकम इसके अंदर आएगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। अब नेक्स्ट उसके अंदर क्या आएगा, आपके इनकम के अंदर स्कोप ऑफ इनकम और सोर्सेस की इनकम। हमको इनकम और किस तरीके से हो सकती है, इनकम फ्रॉम, अब एक जना आया बोला कि मैं तो जॉब करता हूँ, तो उसको सैलरी के बेसिस पे मिल गई। दूसरा पर्सन आया, भाई मेरा तो बिजनेस है, आई एम अर्निंग बिजनेस, मेरी तो कमाई बिजनेस से होती है, तो वो हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन इज बिजनेस से कमाई के बाद वो बोलते हैं कि मैं तो, मेरा कोई काम नहीं है, ना मेरा बिजनेस है ना मेरी जॉब है, आई एम ओनली वर्किंग, आई एम ओनली गेटिंग मनी थ्रू द रेंट। मेरे पास कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, उनका किराया आता है और उससे मुझे घर चलता है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो विल इंक्लूडेड, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वन मोर थिंग, इसमें सिर्फ हम रेंट इंक्लूड करेंगे, अगर कोई पर्सन रेंट पे उठा के मंथली पैसा दे रहा है तो इंक्लूड करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की सेल को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो वन टाइम होगी, उसको हम दूसरे हेड में इंक्लूड करते हैं जिसको बोलते हैं फोर्थ कैपिटल गेन। ना व्हाट इज कैपिटल गेन, वो बोल रहा है कि मेरे को तो रेंट से भी नहीं आती, मेरे पास तो कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मैंने उनको बेच लिया था, कुछ सोना पड़ा हुआ था मैंने उसको बेच लिया था, और मेरे पास वही पैसा है, उसी पे मैं कमाता रहता हूँ। ओके, उसी से मेरी इनकम चलती रहती है। तो वो क्या हुआ, जो मोटी कमाई हुई, जगह बेच के, सोना बेच के जो अच्छी कमाई हुई उस पर्सन की, उसकी वजह से जो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल इनकम हुई उसकी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। इसके अंदर हम लैंड, बिल्डिंग, एनीथिंग जिसकी कि वन टाइम इनकम हो सकती है, एक बार सेल किया और वो इनकम हो गई, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हमने देख लिया सैलरी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। नाउ देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट।
कौन बचाए? कोई 5वां पर्सन आया, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले ने बुलाया कि आप क्या करते हो? बोले मेरे पास तो ना कोई ज़मीन है, मेरे पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना ही मेरा बिजनेस है, ना ही मेरी सैलरी है, मैं तो रेस कोर्स में गैम्बलिंग करता हूँ। ओके, आई डू गैम्बलिंग और मैं तो पार्टिसिपेंट हूँ, केबीसी में पार्टिसिपेट किया था, मेरी ये इनकम केबीसी कॉन्टेस्ट से हुई है। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको भी नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो उस इनकम को जो कि आपकी अदर सोर्सेज हैं, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, किसी भी तरीके की ऐसी जिसमें एफडी से इंटरेस्ट आता है या फिर गेम के थ्रू जब हम अर्निंग करते हैं, उन सारे सोर्सेज को बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको सैलरी है तो, बिजनेस है तो, हाउस प्रॉपर्टी है तो, कैपिटल गेन है तो, अदर सोर्सेज है तो, नाउ दे हैव इंक्लूडेड एवरी पर्सन। अब पर्सन कौन है वो हम दूसरे पॉइंट वीडियो में समझेंगे कि पर्सन का मतलब क्या है, लेकिन जो पर्सन है, जो है इसके अंदर, उनका कोई एस्पेक्ट नहीं बचा कि वो किस बेसिस पे इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट आउट हो सकती है। सो दीज आर 5 हेड्स, These are the 5 heads of income, जिसके ऊपर हम इनकम कैलकुलेट करके टैक्स एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि क्या इनकम टैक्स, कितना इनकम टैक्स किसी एक पर्सन का बन रहा है।